fold. फिर hinge line बताया था आपने, hinge line it is just a line exactly vertical from the hinge point is called hinge line. फिर उसके बाद एक्सल प्लेन बताया था, the एक्सल प्लेन बताया था, a line connecting all the hinge line are combining all the hinge line is called axial plane, sir. Okay, X, okay, okay, okay. Now the house is open for the discussion. If anything you think that he has missed, Asad has missed, so you are most welcome to suggest him and console him. Okay, most welcome. जितने लोगों ने सुने आप. सर इन्होंने जो पहले फोल्ड आपने बोला था यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में, Okay, okay, कि जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उनकी एज इन 200 टू 250 मिलियन ईयर्स है। okay. उसके बाद आपने नाम्स बताए थे उनके सर, Hmm. एंडीज, रॉकीज, एटलस, एल्प्स एंड हिमालय। Okay. तो सर उसके बाद आपने बोला था ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के बारे में, Hmm. जिनकी एज 250 मिलियन ईयर्स एगो सर, Okay. So, उन्होंने ये बोला नहीं सर, अच्छा. जिनमें से अरावली, अपालाचिन, ओरल और सेंटेन एंड वोग आते थे सर। Okay, okay, और आपने सर बोला था कि जो मैकेंजी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रॉकीज, okay, okay, सर और आपने बोला था कि जो चेन्स है हिमालय की, 3 चेन्स, okay. नॉर्थ चेन, also called outer chain, outer Himalaya or greater Himalaya, middle Okay. Himalayas and Shivalik. Yeah. Okay. Anything else? Anything else? और कुछ जो असद ने मिस किए हैं आपके हिसाब से? बाकी व्यू पॉइंट, एनी व्यू पॉइंट? ठीक है, वेल डन असद. ओके, कीप इट अप एंड इट्स रियली गुड टू हेयर यू. ओके, thank consistency you, is sir. the consistency consistency is the biggest thing that human being can do, a student can do. ठीक है, अगर आप consistent है, बहुत ज्यादा आपको ब्रिलियंट नहीं होना है. अगर आप कंसिस्टेंट है, देन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर व्हाट एवर द एग्जाम यू वांट टू क्रैक, it's not a deal of intelligence here. Let's say only deal of your consistency. So be consistent. Okay, whatever you doing, be consistent at. Actually, my system is actually getting hanged today. I don't know why, but it's getting hanged again and again. Okay. So without further ado, let's begin. As per your syllabus, the syllabus prescribe कि concept and types of fold. So last class में हम discuss किए थे कि fold किसको कहते हैं and fold की जो different parts है उसके बारे में हम discuss करने की कोशिश किए, और उसके बारे में जो है concept हम लोग develop किए थे. ठीक है, आज Monday है, so it would be 12:35 would be the last time. So after 12:35 जितने लोग भी रह जाएंगे, आज बात थोड़ा एटलस के ऊपर होगी. ठीक है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता बाकी एटलस के ऊपर बात करने में, या एटलस के ऊपर जो है अभी तक कोई डिस्कशन हो ही नहीं पाया. सो आई वुड रादर एक्सपेक्ट you to stay after 12:35 to get an insight about the atlas, which is important for UPSC, state PCS, and for your future. How to read the atlas, yeah, so what sort of information you must grab from the atlas, that would be our intention to discuss. Okay, so without further ado, let's begin, and let's begin from the very pertinent topic called the classification of the folds. Okay, so those who came for the first time, to make them aware that कि वर्ल्ड में जितने भी फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड्स माउंटेन, स्पेशली यंग फोल्ड माउंटेन की बात किया जाए तो देयर आर 5 यंग फोल्ड माउंटेन. एंड इफ यू लुक द peak of different young fold mountain peak, where the actually highest point actually get recorded, for example Mount Everest. In case of the Mount Everest, in Mount Everest, why the Mount Everest actually located in Nepal, or Kanchenjunga in West Bengal or India, you can say. If you look the kind of structure of the fold that we have in the Kanchenjunga and Mount Everest, it is actually in the anticline form. It is in the anticline form. And in the topmost point of the anticline, which you can see
consider as the hinge line or hinge point, that is the very in terms of is further upgradation and foremost cause in the origin and evolution of folded mountain. And in fold mountain, the thickness in the anticline part further get extended. Again, it is because of the plate tectonics. Fold mountain, it is necessary polar base it is necessary and important to understand the structure, anatomy, and classification of fold. Repetition in a sense, what are the basis about actualize the fold, classification of folds. If you just ask me a very simple questions, so here the classification of the fold your axial plan. Now have a look into the axial plan. Yeah, axial plane. What is the axial plane, Akif? What can you? Yes, sir. What is the axial plane? I think line of different layers. line Arman, which can divide Arman, Yep. what is the A axial plane? line a line connecting Essential all the two hinge lines. Now, if so but hinge all the hinge a lines. line connect so aligned and now in this fold when the axial line or hinge plane exactly divide the two lines equally. हेलो all of you ये देखो जरा यहाँ पे देखिए आप गौर से देखिएगा ठीक है ये मैं कह रहा हूं द टू साइड ऑफ ए फोल्ड क्या कहते हैं इसको लिम्स LIMB लिम्स ठीक ए एंड बी फोल्ड का ए पार्ट एंड बी पार्ट जो है वो क्या हो गया लिम्स हो गया और जो लाइन है इसको क्या कहते हैं हम एक्सियल लाइन जब एक्सियल लाइन एक फोल्ड की दोनों लिम्स की बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल से क्रॉस करे या मिडिल से कट करे तब उस तरह की फोल्ड को हम क्या कहेंगे एसिमेट्रिकल फोल्ड कहेंगे सॉरी सिमेट्रिकल फोल्ड कहेंगे या फिर कह सकते हैं कि बोथ द लिम्फ ऑफ ए फोल्ड इज इक्वल एंड सिमिलर ठीक इसको डिफाइन किस तरह करेंगे नाउ राइट डाउन फ्यू वर्ड्स अबाउट द सिमेट्रिकल फोल्ड Now write down few words of the symmetrical fold. In symmetrical fold, लिखिए जरा. सिमेट्रिकल की स्पेलिंग क्या है? SYMMETRICL symmetrical fold. In symmetrical fold, the axial plane exactly cut across middle of the fold The axial plane
the axial plane exactly cut across middle of the fold and divide it into equal and similar limbs. Middle of the fold. And divide it exactly into two equal and similar limbs. लिम्स किसको कहते हैं? आर्म ऑफ द फोल्ड. जैसे दो हाथ होते हैं ना इंसान के, दो हाथ होते हैं ना, हाथ को क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं. तो फोल्ड का जो है बिल्कुल एक्सियल प्लेन की दोनों साइड को आर्म्स भी कहा जाता है. आर्म्स दोनों को आर्म्स कहते हैं. ठीक है. और इसके जियोलॉजिकल लैंग्वेज में इसी आर्म्स को कहते हैं लिम्स. ठीक. सो द लिम्स ऑफ द फोल्ड. सो सिमेट्रिकल फोल्ड, अंडरस्टूड? ओके, यस. नाउ अब अरावली माउंटेन का नाम सुने होंगे. हाँ जी, अरावली, सातपुरा, नाम सुने ना इंडिया की? सुने या नहीं? सुने हैं सर. यस सर, सुने हैं. ओल्ड फोल्ड माउंटेन में एप्लाचियन माउंटेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. यस, यस सर. सुने या भूल गए? नॉर्थ अमेरिका. चलिए, उराल माउंटेन, रशिया सर. रशिया एंड यूरोप की बॉर्डर पे. Now have a look into the screen. I'm going to share a screen with you. Have a look into this. Is this visible to you? दिख रहा है आपको एटलस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If it is visible, if this is visible, now have a look into this. Now, exactly I'm talking about the Appalachian Mountain of United States of America. Here is the Appalachian Mountain. दिख रहा है आपको Appalachian Mountain? ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए. इस Appalachian Mountain की जो हाईएस्ट पीक के जो शेप है, वो स्टिल द शेप अगर कहोगे तो एसिमेट्रिकल फोल्ड है. उसकी शेप, पीक की जो शेप है. बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? हेलो. द शेप ऑफ Appalachian Mountain, द शेप ऑफ Appalachian Mountain. हाँ, Appalachian Mountain. ठीक है. लोकेशन समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. पता नहीं मेरा जो ये है ना, क्या कहते हैं, वॉइस जो है शायद ये हो रहा है, ब्लर हो रहा है आप लोगों के साथ. आई मीन आवाज ठीक ठाक जा रही है? Yes, sir. सही आ रही है. Okay. Now have a look into this. दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, if it is visible, then let me know you कि Appalachian Mountain की जो हाईएस्ट पीक है माउंट मिचेल. तो माउंट मिचेल की जो शेप है, माउंट मिचेल जहां पे माउंट है, माउंट मिचेल की अगर शेप कहोगे तो एसिमेट्रिकल है. एसिमेट्रिकल फोल्ड से बने हैं वो जगह. ठीक है. नाउ मैं आपको और एक जगह लेके जा रहा हूं. ये है उराल माउंटेन. कहां पे है ये? देखो जरा. ये इधर है, राइट साइड में है साइबेरिया जहां लिखा हुआ है, ये रास्ता का पार्ट है. एंड वेस्टर्न पार्ट जहां वोल्गा लिखा हुआ वो भी रास्ता का पार्ट है. लेकिन इसको कहा जाता है उराल माउंटेन इज द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप. आप जानते होंगे कि कंटिनेंट होने के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए वो क्या है, मालूम है आपको? कितने कंटिनेंट है पूरे दुनिया में? हाँ जी, 7. तो 7 कंटिनेंट होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? कभी सोचा आप लोगों ने? ये 7 ही क्यों है, 10 क्यों नहीं है, या फिर 8 ही क्या कहते हैं और क्यों नहीं है? कंटिनेंट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया? प्रैक्टिकल की क्लासेस किया आप लोगों ने? No, sir. Yes, sir. प्रैक्टिकल के क्लासेस में नहीं बताया आप लोगों को? हेलो. नो सर, नहीं बताया नो गया. सर, अभी तक नहीं बताया गया. सर. ओहो, तो मैप की शुरुआत तो होती है कंटिनेंट से. हैव अ लुक इनटू दिस. देखो 7 कंटिनेंट ही क्यों है, 8 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है, या फिर मोर देन क्यों नहीं है? ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, किस लिए जरूरी है? देखो कि कंटिनेंट की जो डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि लैंड मास या a land mass having congregation of countries, comma
and all together bounded by natural element. देखो जरा इनकी डेफिनेशन को, कहते कि ये लैंड मास है, एक लैंड मास है. व्हाट डू यू मीन बाय द लैंड मास? ये देख लो, दिस इज किसी एक जगह का है, कोई एक जगह है, इस तरह से बोर्ड में देखो जरा, ए लैंड मास, आ लैंड मास हैविंग कांग्रीगेशन ऑफ कंट्रीज, यानी कि इसके बीच कंट्रीज है, इस लैंड मास के बीच डिफरेंट कंट्रीज है. तो हम इस डिफरेंट कंट्रीज को इस तरह कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी. कांग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होना, एक साथ होना, तो हमने ए बी सी डी कंट्री लिख दिया. फॉल्स है. ये लैंड मास हैविंग कांग्रीगेशन ऑफ द कंट्रीज एंड कांग्रीगेशन ऑफ द कंट्री कामा एंड ऑल टुगेदर, यानी कि ये सब कंट्री मिलके बाउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री. तो इसका मतलब ये जो बना है ना पूरा शेप, इसकी चारों दिशा में या चारों साइड में या तो वाटर होगा, या तो फिर क्या होगा कि इस तरह की अगर कांग्रीगेशन ऑफ कंट्रीज कहीं पे और जगह पे है तो दोनों के बीच कोई माउंटेन होंगे या फिर वाटर होंगे. पूरे दुनिया में आप देख लो, जो 7 कंटिनेंट है, all the continent are separate from each other by water या फिर ओशन. अब देखो जरा, गौर करो जरा, फिर मैप आपके सामने हम रिप्रेजेंट करते हैं. एक्सेप्ट एशिया एंड यूरोप, they are separated by the Ural mountain. वो भी एक नेचुरल बाउंड्री है. माउंटेन तो एक नेचुरल बाउंड्री होता है ना जी. हाँ जी, माउंटेन इज ऑल्सो अ नेचुरल बाउंड्री. ठीक, वाटर इज अ नेचुरल बाउंड्री, तो माउंटेन भी नेचुरल बाउंड्री होता है. Now have a look into the political map, that will give you a good understanding. अब देखो जरा, now have a look into the North America की नॉर्दर्न पोर्शन देखो जरा, आर्कटिक ओशन से लेके ये नॉर्दर्न से लेके बिल्कुल जो साउथ अमेरिका से जो सेपरेट है, यहाँ पे देखो पनामा सिटी में पनामा कैनल है, एक पनामा कैनल. सो पनामा कैनल एक्चुअली सेपरेट बिटवीन a separation line between North American and South American continent. बात समझ में आ रही है? Is this okay to all of you? Yes, sir. Now this is Africa. This is African continent. And African continent is separated from the Europe and Asia. अगर कहोगे तो Africa continent actually separated, या फिर इनकी जो चारों साइड है African continent की, वो वाटर से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है. ठीक है, और सेपरेट होता है एशिया से, खास करके यहाँ देखना सुएज कैनाल से ये सेपरेट होता है एशिया. अगर यूरोप की सेपरेशन की बात करोगे तो ऑलरेडी सेपरेट स्पेन पे. यहाँ देखो जरा, देखो इंडिया, हेलो Yes, sir. लिखा हुआ है, यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, Strait of Gibraltar separate between a separation water channel between Europe and African continent. But what about, and if you look the Australian continent, या Oceania continent, again it is separated from the rest of the continent by water as a natural boundary. But in case of Asia and Europe, if you talk about Asia and Europe, जैसे टर्की, दोनों जो है वो यूरोप का भी पार्ट है एंड एशिया का भी पार्ट है. Then what is the separate line of separation between Asia and Europe? So it is very simple. The separation line of Asia and Europe is Ural Mountain. ठीक है, इसे उराल माउंटेन, एग्जैक्टली दिस रीजन. उराल माउंटेन से जो है बिल्कुल कहां तक, कैस्पियन सी, बिल्कुल आपका ब्लैक सी पे आएंगे, और ब्लैक सी से होकर बिल्कुल यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी एंड देन रेड सी, एंड यू विल गेट ए सेपरेटेड लाइन. बात समझ में आ गई? व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. नाउ अनदर कंटिनेंट वी हैव इन द साउथ, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? अंटार्कटिका. क्या हाल है? बिल्कुल इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय द वाटर. यस, ठीक है ना जी? ठीक, बट ये मेरा कंसर्न नहीं है, ये आपको टीच करना. यस, बोलिए सर. ग्रीनलैंड को क्या नहीं कह सकते कॉन्टिनेंट से? ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. ठीक है सर, वो भी तो अलग ही है बाकी. नहीं, देखिए सुनिए, एक्चुअली क्या है, ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका की जो कनेक्शन है, यहाँ पे एक बैफिन बे है. बैफिन बे जो है, बैफिन बे जब अभी बने हैं ना, ये बैफिन बे कहते हैं कि 200 इयर्स बैक बैफिन बे बने हैं. उससे पहले ग्रीनलैंड वाज कनेक्टेड विद द कनाडा. खास करके जो कनाडा में एक जगह है जिसको कहते हैं कि क्या कहते हैं, जॉन सेंट
यहाँ पे है आपके ग्रीनलैंड एंड बिल्कुल विक्टोरिया आइलैंड के बीच एक लैंड मास है जो कनेक्टेड था बिल्कुल आइलैंड से। और एक बात है, ग्रीनलैंड इसलिए कंटिनेंट नहीं हो सकता कि हमने कहा कि अ कलेक्शन ऑफ कंट्रीज या कांग्रीगेशन ऑफ द कंट्रीज, ग्रीनलैंड अ सिंगल लैंड मास। बात समझ में आ रही है? ग्रीनलैंड इज ए सिंगल लैंड मास, देयर इज नो कंट्री एज सच इन ग्रीनलैंड। सर अंटार्कटिका भी तो फिर ऐसा ही है, वहां पे कौन सा देखिए सुनिए, कंट्री है? अंटार्कटिका भी वैसे ही है। अंटार्कटिका इज ऑक्युपाइड बाय द सेवरल कंट्रीज। जैसे अंटार्कटिका में इंडिया का भी जो है, इंडिया का भी लैंड है, इंडिया की भी स्पेस रॉकेट सेंटर है मैत्री नाम का, ठीक है। यहाँ रसा का भी लैंड है, यहाँ यूएस का भी लैंड है। तो अंटार्कटिका इज एक्चुअली ओन्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट रिच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हेलो। सर जो ये सर। स्यूज कैनाल Yes, है, sir. हाँ अगर स्यूज कैनाल नहीं होती हाँ। तो फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट होता या नहीं? नहीं, अगर सुएज कैनाल अगर नहीं होते तो अफ्रीका कंट्री कंटिनेंट नहीं, कंटिनेंट की डेफिनेशन को रीडिफाइन करना होता तब, ठीक है। होते या ना होते वो तो अलग बात है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि इसकी डेफिनेशन जो है इनको रीडिफाइन करना होता। सर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है तो उसके एक्चुअली अंदर नो सारे नो नो, देयर इज नो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, इससे ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया हो सकता है या फिर ओशिनिया होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इट इज नॉट द राइट वर्ड टू से, ज्योग्राफिकली आई एम स्पीकिंग, एटलस के ठीक है लैंग्वेज के हिसाब से। अगर हाँ बोलिए। हम ओशनिया कह भी देते हैं तो हाँ लेकिन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग है ना, हाँ सेपरेट, हाँ हाँ और सारे के सारे पानी से कवर अप है सारी कंट्रीज, हाँ हाँ हाँ। तो इन्हें कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है जबकि नहीं, ऑस्ट्रेलिया का चलो, देखिए सुनिए ना, ओशिनिया कंटिनेंट पे जो बिगेस्ट लैंड मास है वो ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि इन टर्म्स ऑफ द शेयर ऑफ द लैंड मास इसको ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट भी कहा जाता है कभी कभी। बट एक्चुअली एज पर द एटलस, लैंग्वेज ऑफ द एटलस, मैं ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस की मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड एडिशन या फिर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस 36 एडिशन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये ओशिनिया कंटिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट नहीं है। नबील। जी सर, शुक्रिया। ओके, आगे बढ़े। सर हाँ जो रशिया है हाँ। वो यूरोप में आता है या एशिया में? देखिए, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द रसा इट्स एक्चुअली ज्योग्राफिकली, इनका लैंड अगर देखा जाए तो इट इज पार्ट ऑफ द एशिया, बट देयर आर सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक कनेक्शन दैट एक्चुअली बॉन्ड एंड टाइप अप विद द यूरोप, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली, इकोनॉमिकली ये अगर कहा जाए तो रसा एक्चुअली टाइड with the Asia and Europe, but mostly with the Europe. Geographically, major part of Russia actually come in Asia. सर जी जो सर सुएज कैनाल है वो तो सर आर्टिफिशियल है ना, हाँ, नेचुरल तो नहीं है। आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है। जैसे पानामा कैनाल का हाफ ऑफ द पार्ट आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल नहीं, मैन मेड कहते हैं उसको। सर मैन आप सर नेचुरल नेचुरल एलिमेंट लिखवाए ना। हमने कहा नेचुरल बाउंड्री, कहा नेचुरल बाउंड्री से, नेचुरल वाटर एज ए नेचुरल बाउंड्री। यहाँ वाटर को देखिएगा जरा, ठीक है। और छोटा एक हल्का पार्ट है अगर कहा जाए ना, आई मीन क्या कहते हैं आपकी जो सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल से और ये क्या कहते हैं मेडिटेरियन सी के बीच कितनी डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस है आप जानते हैं? एक्चुअली जो आर्टिफिशियल वाला ये है उनका डिस्टेंस 39 किलोमीटर है, जो आर्टिफिशियल वाला ये क्या कहते हैं चैनल बने हुए हैं ना, वो 39 किलोमीटर है, जस्ट 39 किलोमीटर, ठीक है। शाहिद कुछ कह रहे हैं आप? सर शाहिद रहमान कुछ कह रहे हैं, अदरवाइज म्यूट करें। हम बैक करें फोल्ड पे, सर बैक करें। ऑस्ट्रेलिया को कंटिनेंट और कंट्री दोनों बोलते हैं, वो कैसे? देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि एक्चुअली जो है वो कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक्चुअली ओशिनिया कंटिनेंट है। तो ओशिनिया कंटिनेंट पे जितने भी कंट्रीज है, पापुआ न्यू गिनी से लेके माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, सिंथनेशिया, न्यूजीलैंड, बॉस क्या कहते हैं ब्रिफार, जितने भी आइलैंड कंट्री है उसमें जो है सबसे बिगेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट। ये बात है, ठीक है। तो उस संदर्भ में या उस पर्सपेक्टिव में ऑस्ट्रेलिया एज ए कंटिनेंट एंड कंट्री कहा जाता है, लेकिन कुछ ऑथर ने माने हैं, ऑक्सफोर्ड एटलस की मैपिंग के हिसाब से देखेंगे तो नहीं, इट इज ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया कंटिनेंट, ठीक है। ओके सर। बात आगे बढ़ाए, फोल्ड पे आते हैं हम, ठीक है। नाउ बैक टू द फोल्ड, सो हम बात कर रहे थे सिमेट्रिकल। नाउ सिमेट्रिकल के बाद हम एसिमेट्रिकल में आ रहे हैं। एसिमेट्रिकल कांसेप्ट क्लियर हो गया ना जी? कंटिनेंट होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, ये डेफिनेशन Yes, याद sir. रखिएगा। यस, कुछ कह रहे हैं अबूजार? सर नो डिफिनेशन सर। एक बार बोलिएगा।
डेफिनेशन हमने लिख दिया था, इस पे बोर्ड पे लिख दिया था। Yes, ये sir. लैंडमास हैविंग कांग्रीगेशन ऑफ कंट्रीज कामा एंड ऑल टुगेदर बाउंडेड बाय नेचुरल एलिमेंट। सर ठीक। कांग्रीगेशन कांग्रीगेशन CONGRE यस G GATION कांग्रीगेशन। सर फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए सर। A landmass having congregation of countries, comma, and all together bounded by natural element, and bounded by, मैं कह रहा हूं, a landmass having congregation of countries, comma, and all together bounded by natural element. Is this okay to all of you? ओके सर। आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़े, चलिए। सिमेट्रिकल के बाद इसकी बिल्कुल उल्टा वो क्या होगा? एसिमेट्रिकल फोल्ड। क्या होंगे? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड में क्या लिखे? शाहिद रहमान आप अपना कॉपी ओपन करें जरा। शाहिद रहमान प्लीज ओपन योर कॉपी। यस सर। आप बताइए जरा सिमेट्रिकल फोल्ड में क्या लिखे आप? In symmetrical folds, the axial plane cuts across middle of the fold and divide it into two equal and symmetrical limbs. वेरी गुड, एक्सेलेंट। सो आपके सामने अगर बोर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड का ये है पिक्चर है। इन एसिमेट्रिकल फोल्ड एक्चुअली एक्सियल प्लेन इज नॉट कट एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द फोल्ड, और इट्स नॉट एक्चुअली इक्वल या फिर डिवाइड द फोल्ड इनटू टू इक्वल हाफ या टू इक्वल लिम्ब, रादर इट इज डिफरेंट लिम्स, डिफरेंट साइज ऑफ लिम्स। सो हम कह सकते हैं अगर ये सिमेट्रिकल है तो एसिमेट्रिकल ये होगा। इस तरह आप कह सकते हैं। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड पे भी कर सकते हैं। एक्सियल प्लेन एक्चुअली नॉट कट अक्रॉस कह सकते हैं ये। नाउ इन केस, नाउ हैव अ लुक इनटू दिस, इन दिस डायग्राम या फिर इन दिस डायग्राम देखिए जो एक्सियल प्लेन की जो कटिंग है, ये एक्चुअली लिम्स को जो है इक्वली दोनों डिफरेंट अनइक्वल एंड नॉट सिमिलर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो जरा, ये लिम्स, ये वाला लिम्स एंड ये वाला लिम्स की जो ये है, क्या कहते हैं, जो सेफ है, वो इक्वल भी नहीं है और इवन भी नहीं है, कह सकते हैं हम। तो इनका उल्टा लिखिए जरा, उल्टा लिखिए। इन एसिमेट्रिकल फोल्ड, राइट डाउन, इन एसिमेट्रिकल फोल्ड द एक्सियल प्लेन in asymmetrical fold, the axial plane is not cut across the middle of the fold, rather inclined and hence unequal rather inclined and एक मिनट hence unequal. रिपीट करें जरा, क्या कहा हमने? Asymmetrical fold, the axial plane is not cut across the middle of the fold, rather inclined and hence unequal. ओके, ये inclined है and unequal limbs। एक मिनट फिर से रिपीट करें जरा, आई मीन कहीं बात जो है छूट रही है। एक मिनट Asymmetrical fold, एक मिनट अरमान बात को रिपीट करें जरा। In asymmetrical fold, हाँ। the axial plane is not cut across the middle of a fold, rather inclined and hence unequal limb. hence के बाद करें, rather hence के बाद करें, hence it create unequal limbs, ठीक है, unequal limbs।
नाउ इस तरह की फोल्ड की जो एविडेंस है, एसिमेट्रिकल फोल्ड की एविडेंस, ठीक है, वो आप लीजिएगा, आप लिख लीजिए। इसमें हम क्या कहें, एप्लाचियन माउंटेन, एप्लाचियन माउंटेन की जो माउंट मिचेल है, एप्लाचियन माउंटेन की जो हाइटेस्ट पीक है उसका नाम क्या है, माउंट मिचेल, माउंट मिचेल। एंड उराल माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है, या फिर उराल माउंटेन लिख दीजिए, उराल माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक नहीं, उराल माउंटेन ही लिख दीजिए। उराल माउंटेन जो है वो सिमेट्रिकल फोल्ड से बने हैं, ठीक है। नाउ एसिमेट्रिकल फोल्ड की जो अगर हाइटेस्ट पीक को देखोगे एसिमेट्रिकल फोल्ड की, तो आप जानते हैं अन्नाईमुदी, लिखिएगा अन्नाईमुदी, अन्नाईमुदी, ये हमारे इंडिया में कहाँ पे है अन्नाईमुदी, तमिलनाडु पे है, तमिलनाडु पे, ठीक है, अन्नाईमुदी। उसके बाद जो है राजमहल हिल ऑफ झारखंड, राजमहल हिल, राजमहल हिल ऑफ झारखंड। ये किसका माउंट एग्जाम्पल है? किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, ये एसिमेट्रिकल फोल्ड की एविडेंस है। उनकी जो पीक है, उनका जो पीक है वो एसिमेट्रिकल फोल्ड से बने हैं। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका। सर एसिमेट्रिकल रिपीट करवा दीजिएगा सर एक बार किसी से भूल के। तंजिल, तंजिल अहमद, यस सर। आप धीरे से रिपीट करें जरा एसिमेट्रिकल फोल्ड को। यस सर। In asymmetrical fold, the axial plane is not cut across the middle of the fold, rather inclined, and hence it creates unequal limbs. अब्दुल सदात, यस सर हो गया। ओके आगे बढ़े। एग्जाम्पल लिख लिया आपने, अनाईमुदी, राजमहल एंड माउंट किलिमंजारो ऑफ अफ्रीका, ठीक। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए देखिए, इसमें जो है आप याद रखिएगा, ये यूपीएससी में फोल्ड के बारे में डिस्कस करने के लिए आपको लॉन्गर क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा अभी तक, मैं कह रहा हूं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, जो मल्टीपल कहते हैं प्री के लिए क्वेश्चंस आने, प्री के लिए क्वेश्चन की चांसेस है, और पिछले कई साल में पूछे भी गए फोल्ड के ऊपर। नंबर 2 स्टेट पीसीएस के एग्जाम पे भी है, फोल्ड के ऊपर पूछे जाते हैं, लेकिन लेंदी क्वेश्चन में जनरली नहीं पूछे जाते, ठीक है। लेकिन यूपीएससी के अलावा अगर आप ज्योग्राफी में एमए पीएचडी या फिर आगे के लिए फ्यूचर सोचते हैं रिसर्चर्स के लिए, तो वहां पे नेट जीआरएफ की एग्जाम होते हैं। तो नेट जीआरएफ के एग्जाम में बहुत खूब पूछे जाते हैं ये फोल्ड के ऊपर क्वेश्चन, छोटे छोटे होते हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। तो इसको जो है, और अगर आगे चल के जब एमयू की एग्जाम हो या फिर कहीं का एंट्रेंस एग्जाम हो एमए की या फिर किसी की, तो आप जो है हमेशा ये याद रखिएगा कि फोल्ड में जो भी फोल्ड लिखिएगा, आप लिखिएगा दो ही लाइन या फिर 2 ही सेंटेंस, लेकिन डायग्राम जरूर बनाइएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, कि फोल्ड की डेफिनेशन कहीं पे अगर पूछे गए आपको, तो आप डायग्राम मैंडेटरी बनाइएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बार बार यहाँ डायग्राम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नाउ नंबर 3, एक होता है रिकप, यस एसिमेट्रिकल में कंफ्यूजन है थोड़ा सा। नहीं, क्लियर करे, आगे एक्शन बढ़ेंगे। प्लेन। हाँ बोलिए, एक्सियल प्लेन। यस सर, ये हाँ, जब बोलिए। उसको डिवाइड, हाँ आप थोड़ी पहले फिगर बनाए सर। हाँ मैं कर रहा हूँ। फिगर ये बेहतर होता कि एसिमेट्रिकल का फिगर जो है मैं आपको शेयर कर देता, लेकिन मेरे पास फिगर नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिकल केस में सुनिए, सिमेट्रिकल फोल्ड के केस में क्या हुआ था कि आपकी जो एंटीक्लाइन की जो पिकनेस है, जैसे नीचे वाला फोल्ड का पिकनेस देखो जरा, ये पॉइंट पे है, और जो सेकंड वाला फोल्ड है उसका पिकनेस जो है बी पॉइंट पे है, और सी वाला जो फोल्ड आएगा, यहाँ पे सी वाला जो फोल्ड आएगा, पता चला कि उनका पिकनेस जो है सी पॉइंट पे हो, ठीक है। एसिमेट्रिकल के केस में ये होता है। सिमेट्रिकल केस में तीनों की जो हिंज पॉइंट होते हैं बिल्कुल एक ही इसमें होते हैं। हिंज पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। एसिमेट्रिकल के केस में डिफरेंट फोल्ड की हिंज पॉइंट डिफरेंट प्लेस में होता है, लेकिन जनरली जो बिगर फोल्ड होते हैं, जैसे यहाँ 3 फोल्ड का अगर एक साथ देखा जाए, तो अगर बिगर फोल्ड ए है, तीनों अगर इकट्ठा बने हैं, अगर बिगर फोल्ड आउटर वाला है, तो हम सी से लाइन खींचेंगे, सी को कंसिडर करके लाइन खींचते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का एक पैटर्न है, ठीक है। चलिए मंजूर, आपका क्वेश्चन पूछे। तो यही क्वेश्चन था मेरा कि जो हिंज, ये एक्सियल प्लेन है, ये क्या कहते हैं इनको, हिंज लाइन्स का कॉन्ग्रीगेशन है।
हाँ हाँ और जो हिंज लाइन है वो हिंज पॉइंट उसको मिलाती है। हाँ 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 लेकिन तो ये जब है, हाँ बोलिए बोलिए। यानी अगर एक्सियल प्लेन ये एसिमेट्रिकल फिगर ले ले तो इसमें हिंज पॉइंट्स तो वो ज्वाइन ही नहीं होते एक दूसरे से। नहीं, इन केस ऑफ जनरली ये कहा जाता है कि जैसे देयर हियर आर 3 डिफरेंट सक्सेसिव फोल्ड, देख रहे हैं ना, 3 फोल्ड है, ए बी सी, 3 फोल्ड है, तो 3 फोल्ड की डिफरेंट हिंज लाइन, हिंज पॉइंट होगा। अगर फोल्ड ए, इन केस ऑफ फोल्ड ए द हिंज लाइन इज डिफरेंट फ्रॉम फोल्ड बी, ओके, फोल्ड बी का हिंज पॉइंट यहाँ पे है, एंड फोल्ड सी का हिंज पॉइंट जो है समवेयर एल्स। सो which one to be considered as a baseline for the axial plane? तो ये जनरली स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में ये किया जाता है कि जो आउटर वाला ये होगा, फोल्ड होगा। वॉइस ब्रेक हो रहे हैं सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या वॉइस सबके लिए, ब्रेक हो या रही फिर है। आपके लिए सिर्फ ब्रेक नो हो रहा सर, नो सर। नो सर, नो सर। है? मंजूर, यस सर। am I audible? सर नहीं, ब्रेक हो रहे हैं, वीडियो भी पास हो रहा है बीच में। सर आप ठीक चल रहा है सब सर? Yes, sir. So everything is normal. Sir, everything is normal, sir. आई विल That guy रिजॉइन is सर, आई having विल रिजॉइन। Yes, sir. इनका नेटवर्क इशू होगा that sir. guy is having internet problem, sir, you know. Yes. Okay. Now coming to the issue, coming to the very important point. Point here it is. Manjur, am I audible? चले, कनेक्ट होंगे तो पूछ लेंगे। चले, नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड। यस, आपने सिमेट्रिकल फोल्ड का एग्जांपल क्या दिया था? सिमेट्रिकल फोल्ड का एग्जांपल नहीं पता, भूल गए क्या आपने? एपलाचिन। एप्लचियन माउंटेन, ठीक है, लेकिन माउंट आपने एप्लचियन माउंटेन की जो माउंट मिचेल है, हमने वो पॉइंट आउट किया था आपको। आपने तो यहाँ पर भी एपलाचिन एग्जांपल दी। किसमें? एसिमेट्रिकल। नहीं, एसिमेट्रिकल में हमने एप्लचियन की कहा कहे, हमने कभी नहीं कहा। इसमें तो सर यहाँ अनाईमुदी और राजमहल बोले। राजमहल, अनाईमुदी, राजमहल एंड माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो। ओके, आपने ओरल माउंटेन और एपलाचिन। हाँ, एप्लचियन कहा सिमेट्रिकल। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई हैव टू टेक ए अर्जेंट कॉल, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एसिमेट्रिकल का कोड डिफाइन कर दो भाई, एक लाइन छूट गया है। Asymmetrical fold